Welcome to this lecture on gravitation. Today we will discuss the orbital velocity of satellite. Then we will derive the expressions for the time period of satellite and orbital velocity also. Now, before discussing the orbital velocity, one should know what is a satellite. You might have heard about the satellite in your early classes, in your class 8 or class 7. A satellite is a body which revolves around another heavier body. A satellite is a material body, or we can say a material body which revolves another heavier body. For example, moon revolves around the earth. Therefore, we can say moon is a satellite of earth. Earth revolves around the sun. We can say earth is a satellite of sun. Any body which revolves around another bigger body in a circular path, and that body is called as satellite. We have two types of satellites, a natural satellite and an artificial satellite. Satellites occurring in nature, they are called as natural satellites. For example, moon, that's the natural satellite of earth. The maximum number of satellites are present in a planet Jupiter. Jupiter contains maximum number of natural satellites. All those satellites which are made by man, they are called as artificial satellites. All those satellites which are made by man, they are called as artificial satellites. For example, we have INSAT, Indian National Satellite. We have remote sensing satellites. These satellites, they are made by man, so they are called as what satellites? Artificial satellites. Now, before going to the orbital velocity of satellite, one should know about principle of launching of satellites. How a satellite is launched. Principle of launching of satellite. Principle of launching of satellite. Principle of launching of satellite. Today we will discuss the orbital velocity and time period of the satellite. First we will discuss principle of launching of satellite. How a satellite is launched. ठीक है ना? See, suppose this is our earth. This has a center O and radius R. याद देखो, we have an earth. Suppose our earth is a perfect sphere. This earth has a center O and radius R. हमने earth ले लिया, इसका center O लिया और radius क्या ले ली? R. ठीक है? Suppose बच्चों, इस अर्थ पे हमारे पास एक टावर है. सपोज उस टावर का जो टॉप है दैट लाइज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. ये इस टावर का टॉप है एंड दिस टॉप ऑफ द टावर इट लाइज अवे फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. हमने अर्थ ले लिया, हमने बोला कि अर्थ के सरफेस पे एक टावर है. उस टावर का जो टॉप है, दिस इज इट्स टॉप, एंड दिस टॉप ऑफ द दिस टावर इट लाइज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. एटमॉस्फेयर किस हाइट तक होता है बेटा? मैंने अर्थ के सरफेस पे एक बहुत बड़ा टावर लिया है, वेरी हाई टावर, whose top lies outside the atmosphere. Suppose इस अर्थ के टॉप से मैं एक बॉडी को थ्रो करूंगा हॉरिजॉन्टली विद अ सर्टेन वेलोसिटी. लेट द बॉडी बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर. जब आप किसी भी टावर के टॉप से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे, वो बॉडी जो है दैट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ बिकॉज दैट बॉडी बिकम्स द प्रोजेक्टाइल. क्योंकि इस टॉप ऑफ द टावर से मैंने एक बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली. ठीक है ना? जब मैंने इसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, दैट बॉडी विल डिस्क्राइब a parabolic path and will strike the earth, say at point A. Now, ये जो टावर के बॉटम और A के दरमियान ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, this is called range. This is called range of the projectile. This is the range, horizontal range. Distance from the
point, bottom of the tower, and the point where the projectile hits the ground. That's called as a horizontal range. आपको पता है ये horizontal range जो है, this is directly proportional to u. What's u? Velocity of projection. Velocity of projection. अब हम इसी बॉडी को थ्रो करेंगे with more velocity. पहले हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया with a certain velocity. ये बॉडी जो है it becomes a projectile and it strikes the surface of earth at point A. Now suppose we will increase the velocity of projection. जब हमने अब velocity of suppose पहले जो velocity थी suppose ये v1 थी. Suppose मैंने इसको increase किया. Now I throws this body with a velocity v2. जब हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज करेंगे ये बॉडी अगेन डिस्क्राइब करेगी प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना. इट विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस एट पॉइंट बी, ठीक है ना, विद ए ग्रेटर हॉरिजॉन्टल रेंज. पहले हॉरिजॉन्टल रेंज था यहां से यहां तक, अब हॉरिजॉन्टल रेंज थे यहां से यहां तक. अगेन हम फिर से ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज करेंगे. अगेन आपका रेंज जो होगा वो इंक्रीज होगा. से द बॉडी विल हिट द अर्थ सरफेस एट पॉइंट सी. पहले मैंने अर्थ के सरफेस से अर्थ इस टावर के टॉप से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v1. ये बॉडी जो है ये प्रोजेक्टाइल बन गई, ठीक है ना. इसने अर्थ के सरफेस को कहां हिट किया? A पे. इसके बाद मैंने इसकी वेलोसिटी क्या ले ली? v2. इसने अर्थ के सरफेस को कहां हिट किया? B पे. इसके बाद मैंने इंक्रीज की वेलोसिटी कितनी ली? v3. इसने अर्थ के सरफेस को कहां हिट किया? C पे. यानी अगर हम ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है अगर हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे this body will strike the surface of earth at points larger, more and more away from its foot. पहले इसने वेलोसिटी v1 थी, अर्थ के सरफेस को हिट किया A पे, वेलोसिटी इंक्रीज की B पे, वेलोसिटी इंक्रीज की C पे. हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज करते जाएंगे. This body will strike the surface of earth more and more away from its tower till एक वेलोसिटी पहुंचेगी, till there will be a velocity till some velocity, a certain value of velocity is reached. उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो सैटेलाइट है it will miss to strike the surface of earth, but it will start moving around the earth in a circular path. On increasing this velocity of projection, what happens? ये जो horizontal distance है, horizontal range जो है ये increase होता जाएगा, ठीक है ना. एक वेलोसिटी आएगी, एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आएगी जिस वक्त ये बॉडी जो है इट विल मिस टू स्ट्राइक द अर्थ. ये अर्थ सरफेस को स्ट्राइक नहीं करेगी, बट द बॉडी विल बिगिन टू मूव अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर पाथ. This velocity at which the body which is thrown horizontally from the top of the tower misses the surface of earth but starts moving around the earth in a circular path. This velocity is called as orbital velocity. ये velocity इस velocity पे इसने क्या किया? बॉडी ने अर्थ के सरफेस को हिट नहीं किया. तो क्या किया बॉडी ने? ये बॉडी starts revolving, it starts moving or we can say revolving around the earth in a circular path, ठीक है ना. जब इसने रिवॉल्व किया, मूव किया सर्कल के अर्थ के इर्द गिर्द in a circular path, in that case this body becomes a satellite. क्योंकि इसने मूव करने लगी है किसके इर्द गिर्द? अर्थ के इर्द गिर्द in a circular path. तो इस वेलोसिटी पे ये बॉडी जो आपकी है ये क्या बन गई? सैटेलाइट. This velocity is called as orbital velocity, and this circular path in which this body revolves around the earth, this is called a orbit. What is this called as? Orbit of satellite, ठीक है ना. वो velocity जिस velocity पे आपकी बॉडी जो है वो रिवॉल्व करेगी around another bigger body, that velocity is, यहां पर हमने देखा उस velocity को हम क्या कहते हैं? Orbital velocity. इस वेलोसिटी पे, एट दिस वेलोसिटी जो है आपकी बॉडी है इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. ये किस स्टेट में रहेगी? फ्री फॉल, टेंडिंग टू हिट द सरफेस ऑफ अर्थ. But every time it misses the surface of earth, then it will continue to move around the earth in a circular path. ठीक है ना. This was the principle of launching a satellite. ठीक है ना. हो गया. Suppose I have a satellite. This satellite is at a height h above the surface of earth. Suppose this satellite revolves around the earth
in a circular orbit having radius what? Small r. Then this small r will be equal to capital R plus h. Now suppose V0 is the orbital velocity of satellite. What is V0? Shabash. V0 is what? That is the orbital velocity of satellite. अब मुझे निकालना है उसी orbital velocity. Now let us discuss orbital velocity. अभी आपने देखा कि जब एक सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलती है उस वक्त वो सैटेलाइट घूमने लगता है किसके इर्द गिर्द? अर्थ के इर्द गिर्द, अराउंड अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ. व्हाट इज दैट सर्कुलर पाथ कॉल्ड? ऑर्बिट. तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द वेलोसिटी with which the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth is called what? Orbital velocity of satellite. वो velocity जो एक सैटेलाइट को जरूरत है जिससे ये सैटेलाइट ऑर्बिट में जाएगा और मूव करने लगेगा, रिवॉल्व करने लगेगा किसके इर्द गिर्द? अर्थ के इर्द गिर्द. उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी. सिंपल डेफिनेशन, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. या सिंपली द वेलोसिटी विद व्हिच द सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इनटू इट्स ऑर्बिट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. सपोज हमारा अर्थ जो है, दैट अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर हैविंग मास m, सेंटर o एंड रेडियस r. सपोज इस अर्थ के सरफेस से हाइट h पे हमारे पास एक सैटेलाइट है जिस सैटेलाइट का मास जो है वो है m. व्हाट इज m? स्मॉल m. इट इज द मास ऑफ द सैटेलाइट व्हिच इज प्लेस्ड एट अ हाइट h above the surface of earth. सपोज जो सैटेलाइट है, this satellite starts moving around the earth in this orbit, in this circular orbit, ठीक है ना? in this orbit, ठीक है ना? इस ऑर्बिट का रेडियस जो है वो मैंने क्या लिया? r. तो ये r जो होगा this will be equal to capital R plus h. So capital R plus h is the radius of the orbit of satellite around the earth. What is V0? V0 is the orbital velocity of satellite. मैं ऐसे लिखूंगा, capital M जो है this is mass of earth, स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट. शाबाश, वेरी नाइस. आपका h जो है वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट above the surface of earth, above the surface of earth. आपका h जो है वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट above the surface of earth. आपका जो न्यू नॉट है, वी नॉट है, वी नॉट दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. जो स्मॉल r है दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. यहां देखो, कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ सैटेलाइट, h जो है वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट above the surface of earth, v0 जो है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जिससे सैटेलाइट घूमेगा अराउंड द अर्थ, r जो है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. और ये ऑर्बिट जो होगा सैटेलाइट का, इट इज कंसेंट्रिक विद द अर्थ बिकॉज़ बोथ ऑर्बिट एंड द अर्थ हैव द सेम सेंटर. नाउ इस सैटेलाइट को अर्थ जो है वो इस पे एक्सर्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? F. ये फोर्स जो होगा दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. व्हाट इज F? F, it is the gravitational force of attraction, or we can say simply gravitational force exerted by the earth on the satellite. मैं यहां लिखूंगा F जो है this is magnitude of gravitational force. This is magnitude of gravitational force exerted by earth on the satellite. और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो अर्थ ने सैटेलाइट पे एक्सर्ट किया, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है ना? एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका ये F होगा दिस विल बी इक्वल टू G m1. m1 है मास ऑफ अर्थ, दैट इज m. ठीक है ना? m2 है मास ऑफ सैटेलाइट, दैट इज स्मॉल m, डिवाइडेड बाय अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? r, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज FC? What is F?
F is the magnitude of gravitational force exerted by Earth on the satellite. The direction of this force will be towards the center of the Earth. वो मैंने वहां दिखाया. Now, चूंकि सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, लिहाजा इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है. क्योंकि जब भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उस बॉडी को किसकी जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी को परपेंडिकुलर होता है. जब वो उसको परपेंडिकुलर होता है, वो हर पॉइंट पे इस बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता रहेगा. यानी फर्ज करो यहां पर हमारी बॉडी है, ये इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है. यहां पर इसको मैंने एक नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स जो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या है? परपेंडिकुलर. ये नॉर्मल फोर्स ना इस बॉडी की स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ना इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. ये खाली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा. यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करेगा? वो चेंज. नॉर्मल फोर्स ऑलवेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना. नाउ जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उस बॉडी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, ठीक है ना. एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड एक्ट्स अलोंग द रेडियस. क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट है दैट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट देयरफॉर दैट सैटेलाइट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सपोज FC जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट in order to move around the earth in a circular orbit. Now as per the definition of centripetal force, this centripetal force FC होता, ये जो FC होता है, this will be equal to mv0 square divided by r. mv0 square divided by r. सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है वो है F is equal to mv square divided by r. मगर यहाँ वेलोसिटी के बदले हमें v0 है, ठीक है ना. सो दिस विल बी FC will be equal to mv0 square by r. इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हमें बोलना है सैटेलाइट को ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा. देखो, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सैटेलाइट की डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है सैटेलाइट की डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये इसको परपेंडिकुलर है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसको परपेंडिकुलर. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट जो है इसको वो चेंज करेगा. क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट को क्या है? परपेंडिकुलर. देयरफॉर दिस विल कंपेल द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. लिहाजा यहां पर जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें जरूरत है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना. इन इक्विलिब्रियम these two forces, gravitational force of attraction and centripetal force, they become equal. Why gravitational force provides centripetal force here? Because here the gravitational force is perpendicular to the direction of motion of satellite. Therefore it will compel the satellite to move in a circular path. Therefore this gravitational force will provide the necessary centripetal force. लिहाजा इक्विलिब्रियम में क्या होगा? These two forces they will be equal, ठीक है ना. Therefore in equilibrium आपका जो FC होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू F. द टू फोर्सेस विल बी इक्वल. अब FC कितना है? M. शाबाश. M v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू F कितना है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये R, एक R और एक R खत्म, M और M खत्म, तो आपको यहां निकला v0 स्क्वायर. क्या निकला? शाबाश. v0 स्क्वायर इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है. तो आपको यहां निकला v0 जो है दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिंपली v0 कैसे निकाला हमने इन दो फोर्सेस को इक्वेट किया. क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लाई जिस वक्त ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? सेम. तो हमें क्या निकला? v0. व्हाट इज v0? ऑर्बिटल वेलोसिटी. एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन निकला. हम बड़े सारे एक्सप्रेशन निकालेंगे इसको. ये एक एक्सप्रेशन निकला. नाउ लेट अस गो फॉर द अदर एक्सप्रेशंस हियर. यहां देखो, मगर आपको पता है बच्चों, जो आपका ये r है, स्मॉल r, दिस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, ठीक है ना. बट आपका स्मॉल r जो है दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. Radius of orbit that will be equal to radius of Earth plus height of satellite above the surface of Earth. Small r जो है that is r plus h. तब क्या बनेगी? Therefore equation first becomes, क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट? शाबाश. v0 is equal to under root of gm
डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो आपका वी नॉट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, वी नॉट होगा अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ये दूसरा एक्सप्रेशन है। मैं बड़े सारे एक्सप्रेशन निकालूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ये दूसरा है हमारा। ठीक है, नाउ इफ g is equal to acceleration due to gravity, if g is equal to acceleration due to gravity, तो आपको पता है जो g होता है वो होता है बराबर gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं if g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, तो उस वक्त आपका g का वैल्यू किसके बराबर होता है? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच्चों आपको बनेगा gm is equal to gr square. If gm is acceleration, if g is acceleration due to gravity on the surface of earth, तो आपको g जो है that will be equal to gm divided by r square। तो gm का वैल्यू निकालो that will be equal to gr square। अब gr square का वैल्यू इधर दे दो, ठीक है ना। therefore second becomes क्या बनेगी बच्चों? सेकंड, शाबाश, सेकंड बनेगी आपको v naught is equal to under root of, शाबाश बोल ही रहे हो, gr square divided by r plus h। let us call this equation number third। let us call this equation number third। अब r जो है ये बाहर भी आ सकता है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये क्या बन सकता है शाबाश? ये बन सकता है v naught is equal to शाबाश r into under root of g divided by r plus h। ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इसको रखो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ठीक है। नाउ एक और एजम्पशन यहां पर हम करेंगे। पहला एक्सप्रेशन निकला, क्या निकला? अंडर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाय आर। दूसरा निकला अंडर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तीसरा निकला अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। चौथा निकला अंडर रूट ऑफ शाबाश आर इंटू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। थर्ड, अगर हमारा सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता होगा बट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो, इफ द सैटेलाइट ऑर्बिट्स मतलब होगा घूमना, इफ द सैटेलाइट रिवॉल्व्स मींस ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अगर हमारा सैटेलाइट अर्थ के नजदीक होगा तब ये जो h होगा दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, हम ऐसे लिखेंगे इफ द सैटेलाइट is orbiting means हो गया revolving, is orbiting very close to the surface of earth। if the satellite is orbiting very close to the surface of earth, अगर हमारा सैटेलाइट जो होगा if it is orbiting, if it is revolving, वो ठीक है ना, very close to the surface of earth, then हमारा जो h जो होगा h will be very very small। हमारा h जो होगा वो that will be very very small। ये जो h होगा ना ये दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। देन जो हमारा r प्लस h जो होगा दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। क्योंकि उस वक्त जो है h है ये नेग्लिजिबल है। हाथी के ऊपर, हाथी के वेट के ऊपर आंट रखेंगे, वहां क्या कुछ फर्क पड़ेगा हाथी को? वहां हाथी ही निकलेगा। इसको हाथी समझो, इसको आंट समझो। हाथी के वेट को आंट ऐड किया, ठीक है, चोटी ऐड की, तो वेट पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो वो हाथी का ही वेट निकलेगा। ये हाथी है, ये आंट है, तो वहां पर हाथी ही वापस आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है r प्लस h किसके बराबर निकला? r के बराबर। देयरफॉर जरा थर्ड क्या बनेगी? थर्ड इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन बनेगी v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h के बदले क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? r प्लस h के बदले r डिवाइडेड बाय r। दिस r एंड दिस r गोज, दिस इज अंडर रूट ऑफ जी आर। ये आपको एक और एक्सप्रेशन निकला ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये निकला आपको v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 5। आप जो 1, 2, 3, 4 and 5, they are the different expressions of orbital velocity। they are the different expressions of orbital velocity। now हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन से पहले डिस्कस करेंगे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। व्हाट इज द मास ऑफ सैटेलाइट? m, स्मॉल m। यहां पर स्मॉल m है? नहीं है। तो इसका मतलब है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है ना, मगर वो किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ प्लेनेट। सेकंड, रेडियस ऑफ प्लेनेट।
है ना। थर्ड, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तीन चीजों पे, एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास ऑफ सैटेलाइट। जितना भी सैटेलाइट होगा, हर एक सैटेलाइट के लिए सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट एंड हाइट ऑफ द प्लेनेट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अर्थ का जो सैटेलाइट होगा, अर्थ के सैटेलाइट को कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होगी? एस्केप वेलोसिटी की कितनी होती है जरूरत? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। कल निकाला। अब हम देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr। g का वैल्यू दे दो। g है 9.8, है ना। g क्या है? शाबाश। ये है v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.8 into 6.4 into 10 raised to power 6. 9.8 is the value of g, ठीक है ना। 6.4 is the 6.4 into 10 raised to power 6 meters. This is the value of what? Radius of Earth, ठीक है ना। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, 9.8 और 6.4 को मल्टीप्लाई करो। v0 क्या निकला हमें? अंडर रूट ऑफ, शाबाश, कितना? 62.72 into देखो 10 raised to power 6। अब अलग अलग रूट लिखेंगे, अलग अलग रूट लिखेंगे। ये बनेगा v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 62.72 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 62.72 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2। 3 2 हो गया 6। अब इसका रूट देखो, अंडर रूट ऑफ 62.72 वो किसके बराबर निकलेगा? 7 पॉइंट। शाबाश, कैलकुलेट करो। 7 पॉइंट, यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। शाबाश, इसका स्क्वायर रूट निकालो। 7 7 हो गया 49। यहां से कितने आए? शाबाश, 7 पॉइंट क्या है? कैलकुलेट करो। 5 में से 4 1 हटा तो ये आया यहां पर 9 से आएगा 7.9। तो यह आया 7.9। ये स्क्वायर रूट कैंसल। 7.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स पर सेकंड। 7.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको निकालो ऐसे। तो ये v0 निकलेगा 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स हो गया 1 किलोमीटर। 10 रेज पावर 3 मीटर्स होता है कितना होता है? 1 किलोमीटर। ये निकलेगा 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सैटेलाइट को जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत है वो कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड। अब हम आगे जाएंगे। We will derive relation between orbital velocity and escape velocity. Relation between orbital velocity and escape velocity. Relation between escape velocity and orbital velocity. देखो, relation between escape velocity and orbital velocity of satellite and orbital velocity of satellite. देखो बच्चों, मेरी तरफ देखो बच्चों। relation between escape velocity and orbital velocity of satellite, मेरी तरफ देखो। escape velocity कौन सी velocity है? The minimum velocity with which a satellite is thrown, projected upwards so that it may escape the gravitational pull of the earth. That's called as escape velocity of satellite. वो escape velocity आपको पता है, v से हम डिनोट करते हैं, that is equal to under root of 2g into r. escape velocity होती है under root of 2gr. इसको हम ऐसे लिखेंगे ve is equal to under root 2 into under root gr. अलग अलग लिखा मैंने, इसको रूट अलग अलग लिखा। v escape velocity लिखा मैंने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट gr। अभी आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ gr। अभी जो एक्सप्रेशन निकाला था, escape velocity है अंडर रूट 2gr, इसको अलग लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट gr। आपको अभी पढ़ा आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वो किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ gr। तो अंडर रूट ऑफ gr का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो तो आपको निकला escape velocity of satellite is equal to under root 2 times orbital velocity. escape velocity of satellite निकला आपको under root 2 times what? orbital velocity. हम इस ऐसे लिखेंगे, this is under root 2 into v0।
This is the relation between escape velocity and orbital velocity. Escape velocity and orbital velocity. हम इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं. जरा इसको v naught जो है इसको इसके नीचे लाएंगे. This is VE divided by V naught is equal to under root 2. इसको ऐसे लिखेंगे VE divided by V naught is equal to under root 2 by 1. अब हम रेशियो लिख सकते हैं. कैसे होगा? VE is to V naught is equal to under root 2 is to 1. Ratio of escape velocity of satellite to the orbital velocity of satellite, that is under root 2 is to 1. This completes your relation between orbital velocity and escape velocity. इसको time period of satellite. और भाई ये important है सारा. Time period of satellite. देखो time period of satellite क्या लेंगे हम? क्या होता है? जो टाइम इस सैटेलाइट को लगेगा इस अर्थ के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में एक फुल चक्कर करने को, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. जो इस सैटेलाइट को अपने इस ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द एक फुल चक्कर काटने को लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. यानी यहां से सैटेलाइट ने शुरू की मोशन तो वापस इधर से इधर से इधर से इधर से यहां तक पहुंचा. ठीक है ना? तो हम ऐसे कहेंगे time taken by a satellite to complete one full revolution around the earth in its orbit, that's called as time period of satellite. जरा इस one complete revolution में इस सैटेलाइट ने कितनी डिस्टेंस कवर की? यहां से शुरू किया, देखो यहां से शुरू किया, कितनी डिस्टेंस कवर की? इसने इस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस के बराबर जो डिस्टेंस होगी वो कवर किया. अरे यहां से शुरू किया, किसमें चला ये? ऑर्बिट में. वापस आया यहां तक. जो इसने लेंथ कवर की, जो इसने डिस्टेंस कवर की, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, और वी कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है ना? ठीक है ना? तो आपने ये क्या लिया आपने? टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट शाबाश, टू कंप्लीट व्हाट? वन फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. हमें यही टाइम निकालना है, यही टाइम पीरियड निकालना है. आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम किसके बराबर होगा? टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. यहां पर जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी क्या है? v naught. व्हाट वेलोसिटी? v naught को क्या वेलोसिटी कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है ना? इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड t जो होगा, जैसे टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो यहां पर जो डिस्टेंस इसने एक चक्कर काटने में कवर की, दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. पहले लिखेंगे ऐसे, t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैटेलाइट in one revolution divided by velocity of satellite, that is orbital velocity, divided by orbital velocity of satellite. क्योंकि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. जो टाइम पीरियड है वो डिस्टेंस जो इस सैटेलाइट ने एक रिवॉल्यूशन में कवर की, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है ना? डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी. नाउ दिस t will be equal to distance traveled by satellite in one revolution, that will be equal to circumference of orbit. ठीक है ना? circumference of orbit क्या होगा? 2 pi r. कौन सा r? small r. क्योंकि ऑर्बिट की रेडियस क्या है? small r. This will be equal to 2 pi r divided by v naught. What is v naught? Orbital velocity. v naught आपको पता है, v naught होता है अंडर रूट ऑफ g m divided by r. v naught जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ gm by r, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. v naught का वैल्यू जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, आपको t निकलेगा 2 pi r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r. ठीक है? इसको ऐसे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 pi r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय रूट r. ठीक है ना? रूट r जो है वो ऊपर आएगा. ठीक है? तो t बनेगा, आपको क्या बनेगा शाबाश? 2 pi r इंटू रूट r डिवाइडेड बाय रूट gm. ठीक है? डिवाइडेड बाय रूट g
एम। आगे देखो क्या करेंगे इसको, शाबाश बच्चों, इस आर को लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो आर वापस आया, ये ऐसे बनेगा P इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी एम। इन सबको एक ही रूट लिखेंगे, सबको एक ही रूट लिखो। T बनेगा आपको 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय जी एम, ठीक है। T बनेगा आपको 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। इसको रखो फर्स्ट, ये एक एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का है, मगर बट आपको पता है जो आपका आर है सो आर दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच, वो है आर प्लस एच, स्मॉल आर जो है दैट्स आर प्लस एच। तो आपको टी निकलेगा, शाबाश, टी निकलेगा आपको 2 पाई, शाबाश, अंडर रूट ऑफ आर का वैल्यू दे दो, आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर सेकंड। T is equal to 2 pi under root of R plus H का whole cube divided by GM, ठीक है। Now, अगर आपका सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होगा but very close to the surface of Earth, very close to the surface of Earth, तो उस सूरत में जो आपका H होगा this will be negligible, this will be negligible। तो आपको क्या निकलेगा, शाबाश, आपको T निकलेगा 2 pi under root of आर एच जो है वो नेग्लिजिबल है, उसको नहीं लिखेंगे, दिस विल बी आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। ये एक और एक्सप्रेशन है, मगर आपको पता है जो जी एम होता है वो होता है जी आर स्क्वायर, जी एम होता है जी आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जी जो है वो होता है जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अरे जी जो होता है तो जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो जी एम निकालो, वो है जी इंटू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में डालो, ठीक है, डालो इस इक्वेशन में, तो ये निकलेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से इसके दो चले गए तो आपका T निकलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। इसको रखो इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। पहले आपने वो निकाला तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन थर्ड है इसको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है these represent the different expressions for time period of a satellite. These are the different expressions for the time period of a satellite. पहला एक्सप्रेशन क्या है, 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय जीएम। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब डिवाइड बाय जीएम। तीसरा क्या है, शाबाश, T इज इक्वल टू, शाबाश, 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय जीएम। उसके बाद चौथा क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय जी। These are the different expressions for the time period of a satellite. This complete.